ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ صحافیوں کے حقوق کے لیے صحافیوں کی تمام تنظیمیں ایک جان ہیں۔ ایک صحافی دوسرے صحافی بھائی کے لیے اس کے دکھ درد میں شامل ہونے کے باعث خوشی محسوس کرتا ہے۔ سینئر صحافی اور صدر پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن محمد یحییٰ کلیم مرزا نے ماہانہ تنظیمی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے صحافیوں کے لیے ان کے حقوق پر ہر ممکن تعاون کرے گی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مقامی صحافیوں کے لیے کی جانے والی کوششوں کے متعلق ایک آگاہی مہم چلائی جائے۔ اجلاس میں سعید سندھو، میاں جاوید وٹو، شیخ قاسم، محمد علی سجن، مشتاق احمد کمبو، یاسین مغل، ڈاکٹر اکبر وقاص اور محمد جمیل بٹ نے شرکت کی۔ آخر میں تمام ممبران نے مل کر اپنے فوت ہو جانے والے صحافی بھائیوں اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ سابق وفاقی وزیر اور رکن قومی اسمبلی انجینئر خرم دستگیر خان نے پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈرز کو بلدیاتی حلقہ بندیاں کرنے کے بارے میں بریفنگ سے روکنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندے عاصم اعظم خان سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، سابق وفاقی وزیر اور رکن قومی اسمبلی انجینئر خرم دستگیر خان نے پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر کو بلدیاتی حلقہ بندیوں پر بریفنگ سے روکنے کے لیے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا یہ پری پولنگ رنگنگ ہے اور مقامی حکومت کے انتخابات کو پہلے سے متصب کرنے کی کوشش ہے۔ حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کے افسران کی طرف سے یہ متعصبانہ رویہ ناقابل قبول ہے اور عوام کے حق رائے دہی پر الیکشن سے پہلے ہی ڈاکہ ڈالنے کی مذموم کوشش ہے۔ رکن قومی اسمبلی نے مقامی اخبارات میں شائع اس خبر پر اپنا رد عمل دیا جس کے مطابق ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نے بلدیاتی حلقہ بندیوں بارے حکمران پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کو بریفنگ دی اور ان سے مشاورت کی۔ پی ٹی آئی کے ہارے ہوئے امیدواروں کو بلدیاتی حلقوں کے نقشے بھی دکھائے گئے۔ مبینہ طور پر الیکشن کمیشن پاکستان کے نمائندے پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈرز کو حلقہ بندیوں کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ جی بہت شکریہ عاصم ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ بااثر افراد کا محنت کش کی ملکیتی حویلی پر قبضہ کے لیے دعویٰ، سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ متاثرہ شخص نے اندراج مقدمہ کے لیے صدر پولیس کو درخواست کر دی۔ اس سلسلہ میں مزید جانتے ہیں ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز رانا حمزہ سے۔ جی حمزہ، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، فیروز والا روڈ کی رہائشی مافیا نے پولیس کو درخواست دے کر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس کی نجی کمپنی کے مینیجر شہین آباد کے رہائشی رضوان نامی شخص نے اسے سخانے خواب دکھا کر جھوٹا نکاح کیا اور 1 سال تک جو ہے وہ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا، مگر مزید یہ کہ میری نازیبا اور غیر اخلاقی تصاویر بنا کر مجھے بلیک میل بھی کرتا ہے۔ تاہم جب بھی رخصتی کی بات ہوتی تو ٹال مٹول سے کام لیتا۔ شبہ گزرنے پر نکاح نامہ چیک کروایا تو وہ بھی بوگس نکلا۔ دراصل رضوان کے دیگر لڑکیوں سے روابط اور ناجائز تعلقات مجھ پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے تو معلوم ہوا کہ سادہ لوگ مجبور لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ تاہم متاثر لڑکی نے تھانہ دلے پولیس کو مقدمہ کے اندراج کے لیے درخواست دے دی ہے، جس پر پولیس نے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ حمزہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین کشمیر کونسل جاپان مرزا خلیل بیگ نے کہا کہ دھاندلی سے مسلط ہونے والے سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران نیازی کے خلاف الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ حکمرانوں کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ہم اپنے نمائندہ یاسین مغل سے۔ جی یاسین، آگاہ کیجیے گا کیا کہنا تھا مزید مرزا خلیل بیگ کا اس حوالے سے۔ جی بالکل، قدیر رہنما پاکستان پیپل پارٹی چیئرمین کشمیر کونسل جاپان مرزا خلیل بیگ نے کہا ہے کہ حکمران جماعت کے ارکان اسمبلی اور بانی رہنماؤں کی طرف سے حکمرانوں کی کرپشن کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات سے حکمران بے نقاب ہو چکے ہیں۔ حکمران جماعت کے سیاسی بگوڑوں نے حکمرانوں کو ڈوبتی ہوئی کشتی سے چھلانگ لگانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم خطرے کی گھنٹی بجنے پر خوف زدہ ہو چکے ہیں۔ حکمرانوں کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ملک میں ہر طرف آٹا چور حکمران ہائے ہائے، چینی چور حکمران ہائے ہائے اور پٹرول چور حکمران ہائے ہائے کے نعرے گونج رہے ہیں، جبکہ ان نعروں سے حکمرانوں کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ عوام نے مہنگائی، بے روزگاری سے نجات اور ملک کو سنورنے کے لیے مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ یاسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔
जामिया मुहम्मदिया अहले हदीस गुजरांवाला के अमीर असमतुल्लाह पहलवान ने कहा कि मिस्री फौजी अदालतों से अखवान रहनुमाओं को मिलने वाली सजाएं इंसाफ के बरक्स और जमहूरियत के दावादारों के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। अखवान के खिलाफ ऐसा जुल्म किया गया जिसकी कम ही मिसाल मिलती है। उन्होंने कहा कि फर्जी इल्ज़ामात के पीछे छुप कर मिस्री अखवानुल मुस्लिमों को सख्त सजाएं देना इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर कई ममालिक में बोस्निया जैसी नस्ल कशी की दास्तानें दोहराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम के दुश्मनों के जबर के बावजूद दुनिया में इस्लाम गालिब होकर रहेगा, क्योंकि ये फितरत का मज़हब है जिसके मानने वाले अमन और भाईचारे के कायल हैं। अखवानुल मुस्लिमों का कोई तसव्वुर नहीं था। बताए गए मुकदमात बोगस थे, लेकिन इसके बावजूद मिस्र में रकम की गई जुल्म की दास्तान के खिलाफ कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, जो बेहिसी की बदतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि इस वक्त अपने मफादात के हसूल की जंग लड़ी जा रही है। इंसाफ के हक में आवाज़ उठाने का वक्त शायद गुजर चुका है। जमहूरी ठेकेदार भी इसी फार्मूले पर अमल पैरा हैं। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के सेफ्टी डायरेक्टोरेट की तरफ से रीजन भर में कोरोना वबा के हवाले से जारी हुकूमती SOPs पर अमल करते हुए सब डिवीजन की सतह पर सेफ्टी परेड का इनेकाद किया गया। रीजन भर में सब डिवीजन की सतह पर मुनक्कदा सेफ्टी परेड्स के दौरान गैपको के सेफ्टी इंस्पेक्टर्स ने लाइन स्टाफ की PPE चेक की और लाइन स्टाफ को PPE के इस्तेमाल और अहमियत के बारे में आगाह किया। उन्होंने सेफ्टी परेड्स के दौरान लाइन स्टाफ को सेफ्टी की अहमियत के बारे में बताते हुए कहा कि जब भी लाइन पर काम करना हो तो सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लाइन स्टाफ जब भी काम करने के लिए जाएं, अपने असिस्टेंट लाइनमैन को साथ रखें। जिस जगह काम करना हो उस जगह का पहले भरपूर मुआयना करें। जब भी LT लाइन या HT लाइन पर काम करना हो तो लाइन को दोनों तरफ से आर्जी अर्थ लाजमी करें। CIA पुलिस ने साकिब डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान के कब्जा से 1,50,000 रुपये नकदी, 3 अदद मोबाइल फोन्स, 2 अदद पिस्टल और दर्जनों गोलियां बरामद कर ली गईं। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इंतदाद जराइम समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए सिटी पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद ने DSP CIA मोहम्मद नवाज सियाल को खुसूसी अहकामात जारी किए। इंतदाद जराइम के सिलसिले में मौसर कार्रवाई के लिए DSP CIA मोहम्मद नवाज सियाल ने सब इंस्पेक्टर बलाल फारूक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उस्मान, कांस्टेबलान इमरान मजहर देगरान पर मुश्तमिल पुलिस टीम तश्कील देते हुए उन्हें जराइम पेशा अनासर की गिरफ्तारी का टास्क दिया और टीम की खुद सुपरविज़न की। पुलिस टीम ने राजधानी डकैती की वारदात में मलूस मुलजमान को ट्रेस करने के लिए रिकॉर्ड याफ्तान को शामिल तफ्तीश किया। अलावा जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए पेशा वराना महारत की बदौलत मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। इस मौका पर सिटी पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद का कहना है कि राजन और डकैती मुआशरे का नासूर हैं। इनके साथ आनी हाथों से निपटते हुए आवाम को पूरा माहौल फराहम करेंगे। CPO ने DSP CIA मोहम्मद नवाज सियाल और इनकी पुलिस टीम को शाबाश दी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हमें अपडेट करने का। एक और खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां ख्याली पुलिस ने मौसर कार्रवाई करते हुए 2 बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 2740 ग्राम चरस बरामद कर ली। मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए। इस सिलसिला में बात करते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ इकबाल मुजाहिद से। जी नासिर इकबाल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद ने ज़िला भर में मुजरमान इश्तिहारियों और मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करने के अहकामात जारी कर रखे हैं। हदायत के पेश नज़र SHO थाना ख्याली, सब इंस्पेक्टर निसार अहमद और दीगरान पर मुश्तमिल पुलिस टीम ने मौसर कार्रवाई करते हुए 2 बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनके कब्ज़ा से 2740 ग्राम चरस बरामद कर ली, जबकि मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस व मतलूब कैटेगरी A 3 केस मुजरमान इश्तिहारी भी पुलिस के शिकंजे में। गिरफ्तार मुलजिमान में सलमान, असगर, तहसीन, गुलाम अब्बास और असलम शामिल है। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर CPO ने SHO थाना ख्याली सब इंस्पेक्टर निसार अहमद और इनकी पुलिस टीम को शाबाश दी। जी बहुत शुक्रिया नासिर इकबाल हमें अपडेट करने का। अहमदनगर पुलिस ने मंशियात फरोशों और नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजा में 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 2490 ग्राम चरस, 1 अदद पंप एक्शन, 1 अदद पिस्टल और गोलियां बरामद कर लीं।
गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद अरफान, फलक शेर, शहरोज और वकास जावेद शामिल हैं। SHO थाना अहमदनगर ने कहा कि समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करके अमन व अमान कायम करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। घर के आगे खड़े होकर शराब पीने से मना करने पर दर्जनों अफराद का नौजवान पर तशद्दुद, डंडों, सोटों और पिस्टल से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। थाना वजीराबाद कोट खीजरी के मोहम्मद अकरम के बेटे दिलावर को इमरान उर्फ मानी बदमाश ने अपने साथियों के हमरा डंडों, सोटों और पिस्टल से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। साहिल मोहम्मद अकरम का कहना है कि इमरान उर्फ मानी रिकॉर्ड याफ्ता जराइम पेशा और नाजायज़ फरोश है। इलाका के तमाम लोग इससे बेजार हैं। गुज़श्ता दिनों इमरान उर्फ मानी अपने साथियों के हमरा हमारे घर आ गए, शराब पी कर गुलगपाड़ा कर रहे थे। मेरे बेटे दिलावर ने मना किया तो मानी इमरान ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। साबिक एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू गुजरांवाला राव परवेज अख्तर की बतौर डिप्टी कमिश्नर जेहलम तैनाती पर उनके एजाज़ में सर्किट हाउस में अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन गुलजार हुसैन शाह ने कहा कि मेहनती, ईमानदार और फ़र्ज शनास अफसरान व एहलकार ही दरअसल हुकूमत का काबिल कदर असासा होते हैं और ऐसे अफसरान की सरकारी और अवामी दोनों हलकों में यकसां पजीराई होती है। अपनी तैनाती के दौरान फ़र्ज शनासी से हुकूमती तरजीहात पर अमल दरामद करने और आम आदमी को दरपेश रोज़मर्रा मसाइल के हल में खसूसी दिलचस्पी लेने वाले सरकारी मुलाजमीन हुकूमत की नेक नामी में इजाफा करने के साथ खुशगवार यादें भी छोड़ जाते हैं। कमिश्नर गुजरांवाला ने राव परवेज अख्तर को बतौर डिप्टी कमिश्नर जेहलम तैनाती पर साबिक एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू को दिली मुबारकबाद देते हुए उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि शील्ड भी पेश की गई। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई रहनुमा चौधरी शौकत मुनीर ने कहा कि अफसोस है कि तब्दीली के दौर में भी छोटा चोर गिरफ्त में और बड़ा चोर आज़ाद है। एंटी करप्शन हुक्काम भी बाअसर करप्ट माफिया के हाथों बेबस हैं। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज और DHQ अस्पताल में होने वाली करप्शन में कोई पेशरफ्त ना होना तहकीकाती अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि साबका DG एंटी करप्शन एजाज हुसैन शाह ने भी मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों और ऑडिट रिपोर्ट जाहिर ना करने की निशानदही पर रिकॉर्ड तलब किया था और इस हवाले से डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला को खसूसी तौर पर हिदायत जारी की थी। मजीद इस अजब करप्शन की गजब कहानी में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और साबका डिप्टी डायरेक्टर PMU, साबका डायरेक्टर फाइनेंस और दीगर की मिलीभगत से होने वाली बेरहमाना करप्शन और तमाम अफसानी की खातिर अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की बाज़गश्त पंजाब भर में ज़ुबान ज़द-ए-आम थी। उन्होंने कहा कि साबका डायरेक्टर फाइनेंस मैडम सारा बंजमन, साबिक प्रिंसिपल समी मुमताज़ और आफ्ताब मोहसिन के अलावा मास्टर मैंडेट साबका डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुहेल अंजुम भट्ट समेत तमाम करप्ट अनासर का मुफाद आमा के पैसे का बेदरीग इस्तेमाल और लूट मार करने पर हकीकी एहतसाब करके लूटा हुआ अवामी सरमाया हुकूमती खजाने में जमा कराया जाए। एक और अहम खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां थाना कैंट पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान 2 सगे भाइयों समेत 3 आदि मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 2 किलो चरस और रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिए। मुलजिम मोहम्मद इमरान कॉलोनी को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 1320 ग्राम चरस, चांद और शराफत पसरान, इमानत अली और दीगर सकना पीरो शहीद रावाली को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 770 ग्राम चरस और 450 रुपए विटक की रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। खबरें भी और भी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।